हमारे आज के मेहमान इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव और डायनामिक हैं। सलमान सरवर बट का एसोसिएशन रहा है पाकिस्तान के रिटेल और कंज्यूमर बैंकिंग इंडस्ट्री से 26 साल से। लेकिन वो कहते हैं, अब उनका ये दावा है कि वो पाकिस्तान की रिटेल बैंकिंग इंडस्ट्री को रीसेट करना चाहते हैं। ना सिर्फ ये, उनको PSL पाकिस्तान सुपर लीग का आर्किटेक्ट माना जाता है और अगर वो आज भी PSL से मुंसलिक होते तो PSL के दौरान शायद हमारे क्रिकेट स्टेडियम्स खाली नहीं पाए जाते। आइए मिलते हैं अपने मेहमान सलमान सरवर बट से। जी सलमान, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट टुडे। और हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं आपसे पूछने के लिए एंड आई एम श्योर यू रेडी लाइक द वॉरियर दैट यू आर। अच्छा, आपके Thank you very much, Mahin, for inviting me. And I love this sign you've got here, and I'm sure it'll be like a fireside chat. So looking forward to it. Thank you. Like a rapid fire. So आपके बैंकिंग करियर को अगर पहले हम concentrate करें, so you worked for Citibank, ABN AMRO, RBS, and you said famously that I wasn't driven by the money. Very unlike most bankers that we know in Pakistan and elsewhere. So if you're not driven by the money, then what were you driven by? So let me put that in context, right? So I worked for 20 years in the banking industry. And of that, 10 years I managed retail business. So I was group head for 10 years. So as far as my financial needs were concerned, at least as far as I was concerned, I think they were taken care of by the 20 years that I spent. So I had the option to think differently. But after I had come out of banking, so as to speak, after 20 years, there was an option to go either back in or to do something on my own. Now, मैंने ये सोचा हुआ था कि I would do something on my own as a last option. क्योंकि जब आप अंदर से बाहर निकल के आते हैं नए तो you're thinking कि maybe let's get a job outside of the country, or if not, let's get something in the country. वो भी नहीं हुआ तो फिर चलें consulting कर लेंगे. That was my thought process to start with. But the more I considered it from the outside, and I got those options, by the way. I got the option to go out, I got the option to work inside the industry, but they didn't excite me. So what excited me was that somebody called and said, "आप consulting क्यों नहीं करते?" तो I said कि ये तो मैंने बाद में देखेंगे. But we sort of got together and started just scribbling. Got a place for rent and started scribbling. What can we do to work with the industry and help the industry move forward? क्योंकि retail banking से मैं आया था तो retail banking की space में मैं सोचता. And that got me going. So that got me excited. That got my. So I realized that if I wanted to get up the next day and go to work energized, I had to do something that drove me. And somehow that drive for going out and making more money or getting back into the industry outside or inside and making more money just didn't drive me. What drove me was things like trying to build something. So this building sort of project, if I may, of consulting or doing something to work with the industry to help them from the outside, this is what drove me. तो इसलिए मैंने कहा कि पैसा बनाना therefore became the second option, and this became the first option. So if मैं ये भी qualify करना चाह रहा हूँ because people shouldn't think I was a pauper and then I thought money didn't drive me. I was taken care of, and then I had the option. When I had the option to make either more by doing less, or not by doing less, by being in the system, or by doing something on my own, I think what drove me was building something. राइट एंड आपका जैसे आप कहते हैं, आपका दावा है कि रिटेल बैंकिंग इंडस्ट्री नीड्स अ रीसेट, अ रेफॉर्मेशन सो टू स्पीक. सो और ये बहुत अरसे से कह रहे हैं, बट नाउ रिसेंटली आप लोगों का कॉन्फ्रेंस हुई, रीसेट कॉन्फ्रेंस, तो उसके बारे में बताएं. एंड व्हाट डू यू मीन बाय रीसेट? मेनी थिंग्स एक्चुअली. सो इफ वी वर टू लुक एट retail banking, what is retail banking? Retail banking is about serving the individual or small businesses, right? अब agri भी उसमें आ गया हुआ है, तो छोटे businesses, urban, rural and individuals, right? तो today there are about 91 million individual
account holders, both digital and within the commercial banking banks. तो इन customers को serve करना individually these individual customers is retail banking. Ideally, every customer has 4 needs. Transactional, so you want to go and deposit, withdraw money, digital के through कर लें, आप branch के through कर लें, ATM के through कर लें. Borrowing, you need a personal loan, you need a credit card. Protection, you need some sort of insurance, you need a locker. Right. And then savings wealth में products में invest कर दें, mutual funds में कर दें, term deposits में कर दें. Savings needs, ये 4 needs जो हैं, retail banking needs to work towards taking care of the individual customer. आज अगर आप इस banking industry में देखें हमारी, and if you pick up these 91 million customers, of which 80 odd are apparently digital banking customers, and the rest are, commercial banking के अंदर, इनकी चारों needs meet नहीं हुई. So if you look at, how do we look at this? We look at product penetration, means how many products is an individual buying. तो at least 4 products तो होने चाहिए. बिल्कुल. Over a period of time. But हमें 4 नहीं नजर आते. हमें 1 below 2 products of product penetration per customer. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि we as an industry have an opportunity to be able to provide more solutions to our customers whose natural needs are these 4, right? And we have to work harder to be able to also reach out to customers and probably work with them to see what their needs are and provide solutions. So we need to get more customer centric as an industry, as a retail bank industry. 1. Number 2 is, when we get more customer centric, then we will solve more problems because we will understand your needs better. Of course, right. So once we understand your needs better, then we'll solve more problems. When we solve more problems, we'll do more business and make money, and you will get more products and services. So it's a win-win situation. तो उसको सामने रखते हुए मैं कहता हूँ कि there is a lot of work to be done, and retail banking industry can grow by multiples, is what I've said. I said during the conference also that आज से 10 साल पहले भी मैं यही कहता था कि we can grow by multiples. आज से 10 साल बाद भी, उससे 10 साल बाद आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि we can grow by multiples. So there is a lot of space for us to do business. In your opinion, why do you think we have, जैसे elite capture की बहुत बात होती है, elite capture in Pakistan of various industries. तो अब banking और retail banking industry की भी यही बात होती है that there is an elite capture there also. And जैसे पहले हमने बात की थी मोहम्मद यूनुस की और बांग्लादेश. So देखिए, look at it like this, right? I can either operate from 30,000 feet or from 15 or 5, or I can operate at ground level. Mohammed Yunus said something very nice. He said that in order for me to lend to the poor, I had to operate at worm level. So मतलब ये है कि the poor are at the base, and for him to be able to lend to them and solve their problems, he had to operate, he had to exist at worm level, which meant go into their environment, look around, connect with them, understand their needs, see what they want. Only then will you be able to, not just understand, but your fears about anything that exists in doing business with them will start to be addressed, or you will start to address them in your mind. So I really like that doctrine, and I think retail में वो बहुत ज़रूरत है. अगर मैं as an, if I behave like an elitist and I sit, and I'm not saying that this, I'm just giving you an example. तो यहाँ पे अगर मैं 30,000 feet पे बैठ के individual customers के बारे में decision making करूँगा without looking at the opportunity, data, talking to people, and even going out there in the field and talking to my customers, talking to my own people who are doing, who are doing the business, I will not be able to make certain decisions, and maybe I will be driven more by fear. For example, आज अगर आप देखें तो हमारी मार्केट में क्रेडिट कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अभी भी 1.5 to 2 million कार्ड्स है, जबकि the number of customers in a bank, holding accounts individual is 91 million.
चलें उसमें से अगर मैं डिजिटल वॉलेट्स निकाल लेता हूँ, assuming they're smaller customers, तो 10-15 मिलियन कस्टमर्स तो मेरे पास है ना ऊपर। तो वो 10-15 मिलियन कस्टमर्स को मैंने 10 साल पहले भी 1.5 मिलियन कार्ड क्रेडिट कार्ड दिया, आज भी 1.5 मिलियन कार्ड दिया। Why? Right? I'm sure that once we start looking at the numbers and start studying them, and if we go out there and see, you know, who do we want to, who can we lend to, who can we give a credit card to, there will be many more opportunities that will come out. So it's about mindset, as opposed to sitting maybe somewhere and saying, you know, no, if I lend to these guys, if I give more credit card, I will incur losses, right? Yes, you will incur losses, but there is a model that is followed. There is a certain amount of loss that you always have in a business model, and the credit card business also has. You just need to understand who out there needs the card and who you can go out and give that card to. This applies to credit cards, this applies to mortgages, this applies to personal loans, this applies to any other individual loans or business loans that I want to give. आज अगर आप small businesses को देखें तो there is space for us to do business with them. You know, we can go out based on cash flow, their cash flows. We can come up with a certain amount of money that we can lend to them to take care of their cash flow needs. Small businesses की needs क्या हैं? Profitability isn't the bigger issue with small businesses. Cash flow is the big issue. So they're looking for interim cash flow. Between their payments and receipts, they need cash. तो वो उसको bridge करना becomes something that the industry can do. ये जब भी हम करेंगे जब हम anyone will walk the streets, will connect with the customers, will operate at that level, be able to see what's happening, or at least get their people to do it and then come back and tell them that this is the information that we've got. But drive your people to be able to connect with the markets that you're doing. Whereas if you don't do that and you sit in an ivory tower and make decisions, then that becomes an elitist mindset in my view. So there's a lack of awareness, there's a big gap between the banking industry and the people, the consumers. So, there's a big gap between the provider and the and the individual that is going to be. और अगर ये gap bridge हो जाए तो दोनों profit करेंगे. बिल्कुल profit करेंगे. So which is what makes it difficult to understand कि banking industry ज़्यादा proactive क्यों नहीं है इस बारे में. देखिए, banking industry over a period of time has gone through quite an expansion. So in the last 5-10 years, if you look at it, तो काफी सारी चीजें evolve की हैं. Number of branches have expanded, which means a lot more people have been hired. Now, when you hire more people, you have to train them. Right. वो training में हमने और investment इतना नहीं किया लोगों में to develop people to be able to do different sorts of businesses, right, or different sorts of activities in a bank. So we need to, as we've expanded, now we need to sit back and say, okay, we need to upskill our people. तो वो जितना आप upskill करेंगे, तो मैं अगर आपसे पूछूं, how many times has a relationship manager from a bank called you and said with you, Sam, ma'am, I want to sit down with you and just understand what your financial needs are? Never. Never, right? So 8 out of 10 times or 9 out of 10 times when I ask people, it never happens. Somebody will call you with a product and say, मेरे पास ये प्रोडक्ट आप खरीदेंगी, इसमें इन्वेस्ट करें. हाँ, इसमें इन्वेस्ट करें, विदाउट नोइंग कि आपकी नीड क्या है, आपका कैश फ्लो क्या है, आपका व्हाट इज योर फाइनेंशियल मैप लुकिंग लाइक. तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ट्रेन करें फ्रॉम ऑल द बेसिक्स ऑफ इवन हाउ टू अप्रोच Maheen, right? I mean, do I just send her a WhatsApp? Do I send her an email? When I call her, what do I say for the first time? When I meet Maheen, am I just supposed to kind of come up with a product, or should I start to get to know her a little bit? And then once I get to know her and she becomes comfortable with me and I understand her needs, then I present solutions to her. ये हमें सिखाने की जरूरत है. ये expansion जो हुई है, इसमें हमने लोगों को build नहीं किया, या उस स्पीड से हम बिल्ड नहीं कर पाए. तो वी नीड टू नाउ वर्क ऑन बिल्डिंग द स्किल बेस ऑफ आवर पीपल. देन इसके साथ साथ जाहिर है वो एक डिजिटल एवोल्यूशन भी आ रहा है. तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि ये डिजिटल के साथ व्हाट आर द सर्विसेज दैट वी आर गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग. कुछ तो ट्रांजैक्शनल सॉल्यूशंस तो आप ले लेते हैं डिजिटल के थ्रू, but can we provide other products to you through digital, and can we solicit you for that? So in चीज़ों में we as an industry have
a lot more conversations need to be had, and we need to kind of upgrade our industry as a whole to be able to do more business with retail, because this is the largest chunk of customers that any bank has, right? 90% plus of the number of customers that any bank has is retail. That's a big loss because, you know, तो इस पे काम करने की जरूरत है, बहुत शदीद जरूरत है. हाँ. So that's why, if you remember, we had a panel from retail businesses outside of banking. So we called, the CEO of Unilever, the CEO of Food Panda, इसी तरह National Foods, etc. But we wanted to understand from them, how do you sell products to customers? How do you understand your segments? Sachet किसको बेचते हैं? Bottle किसको बेचते हैं? Ice-cream जो है time पे कैसे पहुंचाते हैं to the, So that mindset is something that we need to bring into the banking industry. Banking, retail industry. Exactly. Okay. So इस पे काम कर. Then we need to convert that into, that mindset needs to come in. Products need to be developed with customer centricity. They need to be packaged and presented and marketed in a way that they'll start appealing to you. Then if I need to bring this to you through an individual, then that individual should be properly prepared to be able to, trained and skilled, connect with you, be it a call center person or an RM. जी, तो आपका एक रिटेल फ्रेंचाइज है कनाडा में, जो आप कुछ अरसे से आप उससे मुंसलिक हैं, तो आपकी क्या लर्निंग्स हैं इस एक्सपीरियंस से? So देखिए, ये है, it's like the KFC of Canada. तो इसका नाम है मेरी ब्राउन्स. 70 साल पुराना कनेडियन ये फ्रेंचाइज है. फ्राइड चिकन ये करते हैं. तो हमने जब वहाँ पे थे, तो मैंने और मेरे एक और जो पार्टनर हैं, हमने सोचा कि हम एक फ्रेंचाइज ले लें और लेके फिर उसको मैनेजर को ले लेंगे, उसको वो चलाएगा. तो जब हमने फ्रेंचाइज लिया तो हमने उनको कहा, उन्होंने हमें कहा कि जी आइए ट्रेनिंग हम कराएंगे. तो हमने कहा मैनेजर भेज देते. उन्होंने कहा जी मैनेजर नहीं, आप आइए. तो हम दोनों चले गए. तो उन्होंने हमें कहा कि भाई वो वर्कमैन शूज़ पहन के आइएगा, और फिर वो पैंट उस तरह की पहन के आइएगा, ये वर्कमैन पैंट, और ऊपर जो है वो आप शर्ट हम आपको दे. खैर एनीवेज, वर्कमैन पैंट की क्या मतलब है कि वो होती हैं रफ किस्म की पैंट, जो बिकॉज किचन के एनवायरनमेंट में वो गंदी भी हो जाए तो आसानी से धुल जाती हैं वो. तो इस तरह की वो चीज़ें, रफ एंड टफ टाइप. तो खैर जी, वो फिर हम पहुंच गए. जब हम पहुंचे तो हमें नहीं पता था कि अगले 3 हफ्ते हम किस चीज़ के थ्रू गुजरेंगे. यानी कि वो 3 हफ्ते उन्होंने हमें किचन से शुरू किया, और किचन में उन्होंने, यानी कि मैं आई मस्ट एडमिट कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा किचन में गया हूँ कुछ चीज़ बनाने के लिए. इससे पहले सिर्फ खाने के लिए जाता था. तो उन्होंने हमसे आलू, गोभी, चिकन, ये सारा कुछ कटवाया, बनवाया. फिर एक होता है किचन, कुकिंग एरिया, फिर एक होता है पैक लाइन जहाँ पे चीज़ें बनती हैं. वहाँ पे उन्होंने फिर हमसे टाइम लगवाया, जहाँ पे आप बर्गर्स एक्सेट्रा बनाते हैं और उनको पैक करके आगे पास ऑन करते हैं. फिर फ्रंट ऑफ द हाउस, जिसको फ्रंट ऑफ द हाउस कहते हैं, कि फ्रंट लाइन पे जब लोग आते हैं ना ऑर्डर करने, क्लाइंट फेसिंग, तो वहाँ पे फिर उन्होंने हमें खड़ा करके, तो हमें, ये कॉर्पोरेट रेस्टोरेंट था, तो उसमें ज़ाहिर है इट वाज अ नॉर्मल रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे लोग आते थे. तो वहाँ पे फिर हम खड़े होके, उन्होंने हमसे ऑर्डर्स ली, हमने ऑर्डर्स लिए, और इसके साथ साथ फिर उन्होंने हमसे सफाई भी करवाई कि आपने, जिसको यहाँ पे हम पोछा कहते हैं, तो पोछा मारा, जमीन पे भी, टॉयलेट भी साफ किया, सारा कुछ उन्होंने हमें 3 हफ्ते करवाया. पहले दिन जब मैंने ये काम किया तो मेरी टांगें और पैर जो थे वो सारा दिन खड़े हो के रह गए. मगर जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा दिन आया तो दो आपके सब कुछ वापस अलाइन होना शुरू हो गया, आपकी मसल्स यूज्ड हो जाते हैं. मगर 3 हफ्ते में आपको ये पता चल गया कि ये रेस्टोरेंट चलता कैसे. जब तक आप खुद तक घुस के काम नहीं करेंगे, तो एक ही हमारे लिए, अगर मैं इसको बैंकिंग पे इस तरह से रखूं कि जो भी मैनेजर आता है, वो अगर उसने खुद काम ना किया हो, वो जिस चीज को वो मैनेज कर रहा है, उसने खुद ग्राउंड लेवल पे वो काम ना किया, उसको पता नहीं है कि ये क्या होगा. ठीक है, हाथ से खुद काम करना बहुत जरूरी है. तो हम ओनर्स थे, ओनर्स को उन्होंने 3 हफ्ते पहले ट्रेन करवाया. जब ट्रेन हम हो गए
तो फिर हमारी जो पहली सोच थी कि हम किसी मैनेजर के थ्रू ये रन करेंगे, वो सोच हमने रद्द कर दी और हमने कहा नहीं, ये पहले साल हम दोनों को खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो एक शिफ्ट उन्होंने वो चलाते थे, एक शिफ्ट मैं चलाता था। अच्छा, तो वो जब हमने शिफ्ट चलाई एक साल अच्छा, एक साल चलाई जी, उसके बाद आज अगर मैं यहाँ पे बैठ के अपने उस रेस्टोरेंट के नंबर्स देख रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि अगर ऊपर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, कंप्लेंट आ गई है तो कहाँ पे हो सकता है इशू हो, कहाँ पे नहीं हो। तो ये जब तक इससे ये सीखने में एक चीज मिली कि जब तक खुद हाथों से काम नहीं करेंगे, वर्म लेवल पे काम नहीं करेंगे, मोहम्मद यूनुस जी बिल्कुल, तो आपको काम समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये कोई भी आपको कोई आके बता जाए तो आप उसकी बात मान लेंगे बिकॉज आपने खुद काम नहीं किया। एक ये चीज। दूसरी चीज जो हमने वहां पे देखी वो ये थी कि वो ट्रेनिंग पे बहुत जोर देते। ये भी हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। हमारे रेस्टोरेंट में आज भी जो भी बंदा हायर होता है उसको एक ट्रेनिंग के थ्रू गुजरने की जरूरत है और कॉरपोरेट ने हमें वो सारे पोर्टल्स वगैरह यानी कि वीडियो ट्रेनिंग्स वगैरह एग्जैक्टली अपडेटेड हमें प्रोवाइड की हुई हैं। जो भी हायर होता है वो अपने जो भी उसका जॉब फंक्शन होता है उसके लिहाज से वो ट्रेनिंग्स के थ्रू जाता है और वो सिर्फ जिसको कहते हैं खाना पूरी करने के लिए वो ट्रेनिंग नहीं होती। वो ट्रेनिंग्स एक्चुअली रियल ट्रेनिंग्स हैं कि आप वो ट्रेनिंग करके जब आते हैं तो आपने वो चीज़ आधी सीख ली होती है। फिर आप जब आके उसको हाथ साफ करते हैं उस पर पूरा तो आप यू आर देन फुली ट्रेन। मगर ये ट्रेनिंग को कॉर्पोरेट मॉनिटर करता है। अगर मेरी डायल है हर रेस्टोरेंट का एक ट्रेनिंग डायल है, तो वो अगर 90% पे ना हो तो मुझे कॉर्पोरेट से फोन आ जाएगा ओनर को कि आपका ये बंदा इस ट्रेनिंग पे अभी तक पूरा नहीं हुआ, प्लीज आप इनको पूरी ट्रेनिंग करवाएं, इसका इतना टाइम है। तो वो बहुत जोर है। तो ये हमारे लिए एक और सीखने वाली बात है। मैंने आपको कहा ना हमने ब्रांचेस फैला ली मगर लोगों को ट्रेन नहीं किया। तो ये जो ट्रेनिंग है ये हमने वहां से सीखा कि ये ट्रेनिंग हाथ के हाथ चलनी चाहिए। आप लोग हायर करें, टर्नओवर रहता है मगर टर्नओवर का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को तैयार ना करें, तो आप तैयार करते जाएं। तीसरी चीज जो वो मॉनिटर करते थे वो डेली बेसिस पे हमारी सर्विस क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं। तो एक चीज होती है नेट प्रमोटर स्कोर। नेट प्रमोटर स्कोर का मतलब ये होता है कितने लोग आपके बारे में मार्केट में अच्छी बात कर रहे हैं। अच्छा। नेट ऑफ दोज पीपल जो कि आपके बारे में बात अच्छी नहीं कर रहे, वो अच्छा। स्कोर नेट प्रमोटर स्कोर आपका 70% होना चाहिए। ठीक, हर वक्त। इंटरेस्टिंग। हर वक्त, हाँ जी, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है। तो हमारा वो रेस्टोरेंट में उन्होंने ये मैकेनिज्म बनाया है कि, और ये आपके सुनने वालों के लिए भी जो रिटेल बिजनेसेस चलाते हैं, उन्होंने ये मैकेनिज्म बनाया है कि हर रोज वो पिछले 30 दिन, यानी कि ये रोलिंग नंबर होता है, हर रोज पिछले 30 दिन में का वो 30 एटलीस्ट 30 सर्वेज करवाते हैं। उसके लिए इंसेंटिव हम कस्टमर को देते हैं कि ये आपने ये हमसे खाना लिया है, तो ये पीछे कोड है, आप जाइए सर्वे कीजिए। अगर आप सर्वे कर लेंगे तो ये एक कोड मिलेगा आपको, कोड लेके हमारे पास आ जाइए, हम आपको 15% ऑफ दे देंगे अगले ऑर्डर पे। तो बहुत सारे लोग आते हैं कि जी ये इंसेंटिव होता है। तो और उन्होंने सर्वे क्या किया ये हमें नहीं बताते वो, राइट, बट वो सर्वे का स्कोर हमें रोज मिलता है कि ये पिछले 30 दिन में 30 सर्वेज का स्कोर ये था। और अगर वो 70% नहीं होता, 70% से कम होता है, तो फिर हमें कॉर्पोरेट से फोन आता है कि जी इसको आपने ये चीजें ठीक करनी है। तो सो सर्विस, ट्रेनिंग एंड मैनेजर्स, एवरीवन, स्पेशली द मैनेजर्स एंड द ओनर्स, वो खुद हाथ से काम करें तो फिर गाड़ी जो है आपकी ठीक चलती है। एक और चीज जो मुझे बहुत समझ में आई रेस्टोरेंट में काम करने से, और ये खैर मुझे 30 साल पहले ले गई है, मैं जब अपना करियर शुरू किया था सिटी बैंक में, तो हमें उन्होंने भी हमें फ्रंट पे खड़ा कर दिया कि जी अब आप कस्टमर्स को ग्रीट करें, इनको आप सर्व करें। तो अब 30 साल बाद जब मैंने रेस्टोरेंट में गया तो मैं ग्रीट करता था खड़े होकर। मैंने एक चीज देखी कि मेरी ब्राउन्स में जब आप ग्रीट करते हैं और ऑर्डर लेते हैं तो फिर आप नाम लेते हैं। तो आपने ऑर्डर मुझे दिया, मैंने पूछा आपका नाम, तो आपने कहा माहीन। तो माहीन, जब मैंने ऑर्डर कॉल किया वापस तो मैंने ऑर्डर नंबर सो एंड सो कॉल नहीं किया, मैंने कहा माहीन, आई सी, योर ऑर्डर इज रेडी, पर्सनलाइज हो गया। अच्छा, अब मगर एक दफा अगर आप आ गई तो अब मैंने ये सीखा कि अब माहीन अगर दूसरी दफा आएंगी ना तो मुझे इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। और अगर मैं इनका नाम याद रखूंगा, और माहीन एक होता है फास्ट फूड, एक होता है क्विक सर्विस, कैजुअल सर्विस, और फिर एक फाइन डाइनिंग होती है। तो हमारा जो है ना कैजुअल सर्विस है, यानी कि
क्विक सर्विस में आपको 2 मिनट में खाना मिल जाता है, कैजुअल सर्विस में आपको 7 से 8 मिनट में मिलता है, और फिर आपका दूसरा है कैजुअल सर्विस है हम जो करते हैं। मगर मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि अगर माहीन वापस आए, दूसरी दफ़ा आए या तीसरी दफ़ा आए, तो मैं अगर कहूँ ओ हाय माहीन, आपका क्या, अस्सलाम वालेकुम माहीन, आपका क्या हाल है, खैर से हैं आज, तो ऑल ऑफ अ सडन जो है माहीन के मुंह पे स्माइल आ जाएगी और वो यू नो ज्यादा कनेक्ट करेंगी, खुश होंगी कि ये तो लोग मुझे जानते हैं। तो इसको हम कहते हैं सेकंड होम कमिंग। अच्छा, इट्स लाइक अ सेकंड होम। तो आप जब इधर हमारे रेस्टोरेंट में आएंगी और अगर मैं इस तरह से आपको पहचानूंगा तो आपके लिए सेकंड होम कमिंग होगी। तो इसका मतलब ये, फिर आप इस रेस्टोरेंट में इसलिए नहीं आएंगी कि सिर्फ आपको क्योंकि सर्विस है, वो तो आपको हमें देनी है अच्छी और खाना, मगर एक अपनायत हो जाती है। इसकी वजह से मुझे माहीन का रिपीट बिजनेस मिलता है। राइट, बिल्कुल। जब मुझे माहीन का रिपीट बिजनेस मिलता है तो फिर चांसेस ये हैं कि माहीन रेफरल भी मुझको देंगी, फिर माहीन जाके बात करेंगे कि उस रेस्टोरेंट में जाओ, बड़े अच्छे लोग हैं, वर्ड ऑफ माउथ या फेसबुक पे डाल दूंगी पोस्ट कि यहाँ जाना जरूर। एप्स। और पता है क्या, वहां पे हमें आके लोग दिखाते थे कि आपको पता है ये मॉम्स फेसबुक पेज है हमारा, ओकविल में था हमारे, तो ये मॉम्स ओकविल फेसबुक, ये देखें ये बातें करें लोग आपके बारे में। अच्छा, और ये देखें जिस तरह आप लोग मिलते हैं, और जिस हॉस्पिटैलिटी इसको कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में, और ये बैंकिंग इंडस्ट्री में भी है। आप कितने हॉस्पिटेबल हैं, कितने वार्म हैं जब आप लोगों से मिलते हैं, उनको ग्रीट करते हैं। तो नाम अगर आप याद रखें, लोगों को याद रखें, उनसियत ज्यादा बढ़ती है इससे, तो उसी से बिजनेस होता है। सो वी जनरली से कि इफ यू आर गेटिंग रिपीट बिजनेस बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स वेल, यानी कि अगर मैं आपको खाना अच्छा दे रहा हूं, टाइम पे दे रहा हूं, और मेरी हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, एक उनसियत है, तो मुझे रिपीट बिजनेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और अगर रिपीट बिजनेस मिलने के चांस बढ़ेंगे तो मुझे रेफरल भी मिलेंगे, और अगर मुझे रिपीट और रेफरल बिजनेस मिलता है, इसका मतलब है मेरा बिजनेस डे बाय डे बेहतर होता जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इसमें मुझे एक सवाल मुझे पूछना है कि आप फिर लोग कस्टमर्स के नाम कैसे याद रखते थे? तो उसमें आपको थोड़ा सा अगर आप एक्चुअली पता है, अगर आप किसी का नाम लेना और नाम लेने की वजह से थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हो जाए तो अक्सर आपको याद रह जाता है। अच्छा। हाँ, और सबका नहीं रहता, मगर ये जरूर होता है कि अगली दफा कोई आए तो हेलो हाय जरूर होती है इस तरह से। हाँ, राइट। और फिर आप फिर भी पूछ सकते हैं, कि आप अपना नाम बता सकते हैं, पिछली दफा भूल गया, तो एटलीस्ट वो कनेक्शन तो होता है ना कि आप पिछली दफा आए थे। और शक्ल से भी आप इसे पहचान सकते हैं कि ये पहले आ चुके हैं रेस्टोरेंट। बिल्कुल बिल्कुल। एज अपोज टू अगर मैं ऐसे खड़ा रहूं बिल्कुल मुंह बना के और सीधे मुंह के साथ, और हर वक्त आपको सीधे मुंह के साथ ही ना पहचानूं ना कुछ, तो फिर आप भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। जब बिजनेस आपको करना है अच्छा, वैसे भी जिंदगी में अगर आप लोगों से कनेक्ट करके अच्छी तरह बात करें, हुसन से बात करें, तो उसके फायदे बहुत सारे, बात ही और होती है। अच्छा, अब हम आते हैं आपके एक बहुत बड़े अचीवमेंट की तरफ, PSL पाकिस्तान सुपर लीग के तरफ, जिसमें जैसे आपने, हम कह सकते हैं क्रिकेट में आपने ये भी रीसेट किया। When you were at ABN AMRO आपको चांस मिला, उस वक्त तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट से स्टार्ट किया, और PCB भी इन्वॉल्व थे, मियाँ साहब, शहरियार साहब थे। मियाँ साहब नहीं कहना चाहिए वरना लगता है कोई दूसरे मियाँ साहब की बात हो रही है, और मियाँ शहरियार। तो उस वक्त तो आपने शुरू किया, तो वो भी एक रीसेट था, राइट? क्रिकेट इन पाकिस्तान वाज रीसेट एट दैट टाइम, एंड देन द नेक्स्ट रीसेट केम जब PSL। तो आप वो जर्नी हमारे साथ शेयर करें कि हाउ डिड दैट स्टार्ट एंड व्हाट हैपेंड, एंड आर यू, अब जब आप PSL को देखते हैं, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि अगर आप अभी तक मुंसलिक होते PCB और PSL के साथ, तो शायद हमें ये खाली स्टेडियम्स, क्रिकेट स्टेडियम्स जो मिल रहे हैं PSL के मैचेस के दौरान, और ऐसे शहरों जैसे कराची जैसे शहर जहाँ इतने लोग क्रिकेट देखते हैं और इतना पसंद करते हैं, उनको इश्क है, ये नहीं होता ऐसा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये किसी इस तरह की चीज़ कोई एक इंसान अकेले नहीं करता। तो चाहे वो ABN AMRO का इवेंट हो, चाहे वो PSL हो, ये एक टीम एफर्ट है। बहुत सारे लोगों ने इसमें मेहनत की, और वो मेहनत की वजह से अल्लाह ताला ने फिर उसमें बरकत डाली। ABN का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ABN का ये जब हुआ तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये किस्सा है कि मियाँ साहब, मरहूम शहरियार साहब, इंडिविजुअल आई हैव हैड सो मच रिस्पेक्ट फॉर, एंड जिसको मैं कहूँ ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ टाइम गुजारना।
बहुत रिफाइंड और बहुत ही, मैं लफ्ज नहीं है मेरे पास। तो शहरियार साहब आए कराची एक दफ़ा, ये मैं 2002-03 की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने सारे कॉर्पोरेट वालों को इकट्ठा किया और कहा कि हम रीजनल फॉर्मेट पे जा रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट करें। तो मैं भी गया उस मीटिंग में, तो मुझे अच्छा लगा कि अच्छा, ये रीजनल, इसका मतलब लाहौर की टीम, कराची की टीम, ऐसी टीमें बनेंगी, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। मुझे, जैसे आपको पता ही है कि मुझे स्पोर्ट्स का शौक़ है, तो पढ़ता मैं कम था, खेलता ज़्यादा था। तो वो शौक़ जो था वो, अब बैंक में इतने साल काम करने के बाद मुझे ये शौक़ जब सामने नजर आया तो मैंने कहा कि इसको हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। अब मेरे बैंक वालों ने भी सपोर्ट किया इसमें। तो हमने कहा कि जी इसको, उन्होंने फिर जाके ये रीजनल फॉर्मेट की जो सारा सिस्टम था, इसको उन्होंने लॉन्च किया। लॉन्च करने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि ये 10 टीमें हैं, 8 या 10 टीमें थी, इनके ये हम लॉन्च कर रहे हैं, आप इनके लिए बिड कर सकते हैं, और आप डोमेस्टिक क्रिकेट की स्पॉन्सरशिप के लिए भी बिड कर सकते हैं। तो हमने कहा कि जी हम बिड करेंगे, हम टीम के लिए बिड करेंगे। तो हमने जाके एक टीम के लिए बिड कर दिया। बिडिंग प्रोसेस जब खत्म हुआ तो मुझे फ़ोन आया लाहौर से, मेरे कॉलीग थे एवीएन एमरो में, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरे पास गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। मैंने कहा गुड न्यूज़ बताएं पहले। उन्होंने कहा जिस टीम के लिए हमने बिड किया था वो टीम हमारी है, हमने वो। तो मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, बैड न्यूज़ क्या है? उन्होंने कहा जी बैड न्यूज़ ये है कि सारे बिडिंग प्रोसेस में हम ही एक बिडर थे। तो अच्छा, मैंने कहा इसकी क्या वजह थी कि आप से बात? इसकी वजह कि एक हम बिडर थे। इसकी वजह प्रॉब्ली ये थी कि पीसीबी हिस्टोरिकली हैज नॉट बीन वेरी गुड एट मार्केटिंग एंड कमर्शलाइजिंग। तो वो रिलाई करते हैं वेंडर्स पे। अच्छा। खुद जब वो करते हैं तो वो जनरली इतने अच्छे नहीं हैं, जबकि मेरी नज़र में पीसीबी को इस चीज़ पे बहुत गौर व फिक्र करना चाहिए। और इतना बड़ा प्रोडक्ट है, इसको तो मार्केट और बिल्ड करना बहुत ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत। Exactly. लेकिन जब पीसीबी ने कॉर्पोरेट्स को ऑन बोर्ड लिया तो और कॉर्पोरेट्स और बैंक्स या एमएनसीज वो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे इस बिडिंग में? जब नहीं थे, बिकॉज हम ही एक बिडर थे तो नहीं थे। देन शहरियार साहब, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, ही केम, फ्लू ऑल द वे टू कराची because he knew that we had bid. अच्छा. He came and he sat with us and he said, listen, आपने एक टीम के लिए बिड किया है, तो इतने रुपए आपने बिड किए इस टीम के लिए, अगर आप इसको इतना कर दें तो हम आपको टाइटल स्पॉन्सर दे सकते हैं, मगर हम आपको वैसे नहीं दे सकते, हमें रीबिड कराना पड़ेगा, तो आपको बिडिंग प्रोसेस में फिर आना पड़ेगा। बट अगर आप बिड करते हैं तो हम आपको, आप यू कैन पॉसिबली विन इट। तो हमने कहा हाँ चलें, ये बुरा आइडिया नहीं है। मैंने जब पूछा अपने सुपीरियर्स को जाके तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हमें करना चाहिए। मगर हमने शहरियार साहब को जाके कहा देखिए, हम सिर्फ स्पॉन्सरशिप के पैसे दे के पीछे नहीं हटेंगे, हम अगर इसको स्पॉन्सर करेंगे तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो उन्होंने पूछा क्या? हमने कहा ये ऑब्जेक्टिव ये है कि ये है डोमेस्टिक क्रिकेट, तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट को इसलिए स्पॉन्सर करेंगे कि हम चाह रहे हैं कि इसमें फुटफॉल्स और आईबॉल्स लेके आए, इसमें लोगों को लेके आए स्टेडियम्स, और फिर आप हमारे साथ फिर काम कीजिएगा उस पर, हम इसको आपको पैसे देके छोड़ेंगे नहीं। तो दे सेड बिल्कुल, ये तो हम चाहते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे आई हैव टू आस्क, उस जमाने में क्रिकेट स्टेडियम्स में क्राउड्स होते थे, लोग आते थे? नहीं, उस जमाने में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट देखने कोई नहीं आता था। तो एक फेमस सेइंग है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को 4 लोग और एन अ डॉग देखने आते हैं, भरे स्टेडियम में कोई भी नहीं होता। अच्छा। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि हम लेके आए। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने जाके बिड किया, हमें फिर कोई भी नहीं आया, तो हम ही आए, तो हमें वो टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल गई। अच्छा, टाइटल स्पॉन्सरशिप में जो हमने पैसे दिए थे वो तो एक अमाउंट था, मगर अब अगर इसकी तरफ आईबॉल्स और फुटफॉल्स लेके आना था तो उससे 3-4 गुना ज्यादा हमें स्पेंड करना पड़ा। जाहिर है। अब वो किस चीज में? तो सबसे पहले तो हमने रिसर्च की जाके, तो हमने जब रिसर्च की तो हमने लोगों से पूछा जाके कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच हो रहा हो और इसमें पाकिस्तान के प्लेयर और डोमेस्टिक के टॉप प्लेयर आके खेल, आप आके देखेंगे? तो 9 आउट ऑफ 10 पीपल सेड बिल्कुल देखेंगे। तो हमने कहा ये तो हर साल होता है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हर साल होती है, आप क्यों नहीं आके देखते? उन्होंने कहा जी हमें तो अगले दिन सुर्खियों में पता चलता है कि कल मैच हो गया था, जो मेरे घर के पीछे जो है ग्राउंड उसमें हो रहा था, मुझे तो नहीं पता था। सो वन थिंग वी रियलाइज इज कि बिल्डअप बहुत जरूरी है, यू हैव टू ड्रम इट अप, राइट?
It's a marketing technique. You have to, you have to create awareness about the product and excitement. तो फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि सबसे पहले तो हम ये जो रीजनल टीम्स हैं इनके नाम दिए हुए थे, कराची वाइट्स, कराची ब्लूज, लाहौर वाइट्स, आपको याद है पुराने ज़माने में। तो हमने कहा ये ब्लूज वाइट्स तो हम नहीं देंगे, इसको वी हैव टू गिव ईच टीम एन एक्साइटिंग ब्रांड नेम। तो हम बैठे, पीसीबी के साथ बैठे, और हमने काफ़ी डिबेट के बाद वी अराइव्ड एट द एनिमल किंगडम एंड वी सेड कि हमने वेस्ट की तरफ देखा तो हमने वहाँ पे भी देखा कि वहाँ पे ब्रांडिंग कैसे हुई होती है टीमों की। तो वो क्लब्स हैं जिनके मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया, या तो एक तो वो है, दूसरा ये एक्साइटिंग से नाम थे जैगुआर्स और ये और वो। तो हमने कहा ये ज़रा ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि रेलिवेंट टू एरिया हम कुछ नाम निकालते हैं, सम रेलिवेंट सम नॉट। तो फिर कराची डॉल्फिन्स और कराची ज़ीब्रास और लाहौर लायंस और लाहौर ईगल्स और इस तरह से फिर ये ब्रांड्स हमने बनाए, और फिर उनको हमने पैटर्न्स भी बनाए, नाम भी बनाए और उनको लॉन्च किया। जब हमको लॉन्च किया तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए क्या थी, नॉट द स्टेडियम्स, अभी तो स्टेडियम हुआ नहीं था, सबसे पहले ये थी कि लेटर टू द एडिटर में ख़त आने शुरू हुए। अच्छा। क्योंकि लोगों ने नोटिस किया, और ये नोटिस क्या किया कि जी आपने कराची को ज़ीब्रा और डॉल्फिन क्यों दे दिया, जबकि आपने लाहौर को लायन और ईगल दे दिया। तो हमने कहा कि जी नहीं, आप कराची को शार्क देते, और people wanted to be kind of हाँ। तो बट एनीवेज वी स्टेड विद दैट, एंड द थिंग इज कि हमने उसको पहले तो हमने ब्रांड्स को मार्केट किया। उस जमाने में कोई पीटीवी स्पोर्ट नहीं होता था, कोई जियो सुपर नहीं होता था। मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, 2003 की बात कर रहा हूँ। Just PTV, there was no sports channel, only 10 sports, right, जो बाहर का चैनल था। तो हमने फिर एक हमारे एक्टर हैं यहाँ पे साजिद हसन, अगर वो सुनेंगे कभी तो वो उनको याद होगा कि साजिद, क्योंकि वो भी क्रिकेट का उनको शौक है, तो हमने साजिद को कहा कि साजिद ज़रा आइए हमारे साथ बैठ के एक प्रोग्राम बनाते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात करते हैं बैठ के। तो वो पहली दफ़ा हमने एक टीवी चैनल पे बैठ के एक प्रोग्राम किया डोमेस्टिक क्रिकेट पे। वो हमने कोई, आई थिंक कोई वीकली था, कोई इस तरह हमने चलाना शुरू किया। तो आइडिया वाज कि हमारे सामने फिर टूर्नामेंट्स थे, वनडे टूर्नामेंट था, और फिर इस तरह से T20 टूर्नामेंट भी आया। वनडे टूर्नामेंट में हमने इन ब्रांड्स को लॉन्च किया। पहले हमने ड्रम अप किया कि ये टूर्नामेंट आ रहा है, फिर उस ब्रांड्स को लॉन्च कर दिया, और फिर हमने वो टूर्नामेंट को डिलीवर किया। जब हमने डिलीवर किया वनडे टूर्नामेंट को, तो उसके फाइनल में हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। अच्छा, इतनी ज्यादा टर्नआउट उस पहले टूर्नामेंट में नहीं था। अच्छा। मगर हमने जाके स्कूल से हम बच्चे ले आए, बसें भर भर के। अच्छा। लाहौर में ये एक फाइनल हो रहा था, तो हम वहां पे ले आए बच्चे भर के। अब जब फाइनल हो रहा था तो बच्चे आने से पहले एक गेम का स्टैंडर्ड चल रहा था, और जब बच्चे आ गए और वो उनके हाथ में झंडे को 2-3 हजार बच्चे सिर्फ आ गए वो स्टेडियम में, हमने गद्दाफी स्टेडियम में बैठा, तो वो जो स्टैंडर्ड ऑफ प्ले था it went up. अच्छा, there are these people who are watching, even though the kids had, part of them probably had no connection with the team, but they were just there enjoying cricket. And the players, obviously human beings है ना, तो entertain करने के लिए करते हैं। तो then अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये वनडे हो गया, फिर इवेंचुअली T20 आया। अल्लाह का करना, when things fall in place तो they fall in place। इसको लाइव अच्छा, वो लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ था, वो जो वनडे वाला था। ये हमने कहा कि ये लाइव टेलीकास्ट होना बहुत जरूरी है। तो मैं आई वोंट गो इनटू अ लॉन्ग स्टोरी, बट 10 स्पोर्ट ने इसको लाइव टेलीकास्ट किया, और फिर इसमें वो कमेंटेटर्स भी आए, वो अपने कमेंट्री के वो लेके आए, मंजरेकर आया, एंड रमीज, एंड वकार, एंड ऑल दीज गाइज, these legends of Pakistan and India, they came, and हमने ये टूर्नामेंट को लॉन्च किया। अच्छा, जब लॉन्च किया तो हमने इससे 45 दिन पहले, लाहौर में होना था, तो 45 दिन पहले हमने ड्रमिंग अप शुरू कर दी। वहाँ पे हमने कॉलेज स्टॉर्मिंग की, सिग्नल स्टॉर्मिंग की, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता न्यूज़पेपर्स में दिया, फिर बैनरिंग की, फिर तो अवेयरनेस बिल्ड हमने करनी शुरू कर दी कि ये आ रहा है ये टूर्नामेंट T20, इट वाज कॉल्ड द नेशनल T20, एग्जैक्टली। बट सिंस इट वाज द फर्स्ट टाइम, हमें नहीं पता था कि लोग आएंगे कि नहीं।
Then the lights went on the first day, and we waited and we said कि पता नहीं अब कितने लोग आएंगे. पहला मैच अब था. माइन पहले मैच में कोई 2-3 हज़ार ऑर्गेनिक लोग आए देखने. So it was an 8-day tournament, 8 to 10 day tournament. पहले दिन, दूसरे दिन, every day the number of people started to grow. Increase. In the semi-finals, so Gaddafi Stadium has a capacity of about 25,000 at that time. There were 15,000 people in the semi-finals. Wow. Watching. I mean, imagine from a state of 4 people and a dog to 15,000 people. And I remember Ramiz was so excited, and Shehryar Saab also so excited. You know, people had come to watch, and the players, all of a sudden, the players didn't realize that, you know, ये इतना response आ जाएगा. Final में there were 30,000 people at least. Wow. You know, मैंने मैच पे आना था 1 घंटा पहले. तो मेरी टीम ने मुझे 2 घंटे पहले फोन किया. मैं होटल में था. मुझे 2 घंटे पहले फोन करके कहा कि आप अभी आ जाए, नहीं तो इसके बाद हम आपको अंदर नहीं लेके आ सकते. So there were people outside, there were people inside, and after that, every year we used to drum it up a little bit, but every year it was covered live. फिर आ गया जियो सुपर भी आ गया, PTV Sports. तो ये फिर हमें हर मैच पैक्ड स्टेडियम्स के साथ मिलता था for 8 years. Wow. अच्छा, हम क्या करते थे कि हम हर वक्त इसमें नई नई चीजें कर लेते थे, राइट? इनोवेशंस कर लेते. कभी हम प्लेयर्स के लिए कोई इवेंट बना देते थे एट द ग्राउंड. ABN became RBS at one time. तो RBS NatWest उन्होंने एक्वायर किया था इंग्लैंड में. तो NatWest इज अ बिग सपोर्टर ऑफ क्रिकेट. तो उन्होंने वहां से हमें चीजें भेजी, लाइक बॉलिंग नेट्स एंड बैटिंग नेट्स एंड फील्डिंग नेट्स. तो वो हम फिर बिफोर एवरी मैच हम प्लेयर्स की और क्राउड की एंगेजमेंट करते थे. अच्छा, इंटरेस्टिंग. फिर हम उस पर प्राइजेस भी देते थे. सो एंड देन वी रेज द पे चेक फॉर एवरी प्लेयर. यानी कि मैन ऑफ द मैच जो लेता था, या फील्डर ऑफ द मैच, बॉलर ऑफ द मैच, वो भी हम उसमें हम एक रेस पे चेक देते थे. सो यू नो, वी ट्राई टू डू समथिंग न्यू एवरी टाइम टू अट्रैक्ट. तो फिर हमने कहा लाहौर में हर साल नहीं होना चाहिए. लाहौर से फिर कराची आया, कराची से फैसलाबाद, यू नो, इस तरह वी रोटेटेड इट सो दैट वी कुड गेट एंगेजमेंट एवरी ईयर. बट आई कैन टेल यू आई थिंक 2003-4 से 2010 तक हमने रन किया, ABN and RBS ने. एवरी ईयर इट वाज चॉक अ ब्लॉक. एंड इवन द टीवी रेटिंग्स, इसकी जो टीवी रेटिंग्स थी, उस 2008 में IPL शुरू हो गया था, तो जियो सुपर IPL को भी कवर करता था. एंड आई रिमेंबर देम टेलिंग मी कि उस वक्त IPL भी होता था और हमारा टूर्नामेंट भी हो रहा था. कहते हमारे टूर्नामेंट की रेटिंग्स जो थी वो IPL जितनी. अच्छा, वाओ. Then when तो इससे ये हुआ कि 8 साल मेरी भी PCB के साथ, because I was involved in this from our side, तो हमारी काफी गपशप होती रहती. तो then खैर हम सब इनको कहते रहते थे कि ये हम एक स्पॉन्सर हैं, we are a big sponsor, we will help you. तो मैं मियाँ साहब को भी मैंने कहा कि I will help you, if you'd like I'll go with you to every city and we'll tell people the story, the benefits that we get. चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं 25 मिलियन रुपए स्पेंड करता था हर साल उस जमाने में ऑन द T20, और मुझे उसकी वैल्यू जो थी, डॉक्यूमेंटेड वैल्यू, वो 100 मिलियन रुपए से ज्यादा मिलती थी. अच्छा, राइट. सो आज तो खैर नहीं, बट आज भी अगर आप RBS का पूछेंगे ना लोगों से तो उनको याद रहेगा. डू यू रियलाइज कि RBS पाकिस्तान में सिर्फ 2 साल के लिए आया था एज अ ब्रांड. अच्छा. ABN was there for so many years. RBS came in 2008-9 and left in 2010. तो 2 साल के लिए आया था, आज भी वो नाम याद है आपको. Because of sport. Yeah, sport. Right? तो sport के साथ ना आपकी एक happy emotions आपके trigger होते हैं. तो वो उसके साथ brand associate कर देंगे तो गड़ जाएगा दिमाग में. तो वो हमने बहुत फायदा उठाया उसको. In fact, ABN ने जब हम ये करते थे T20, तो मुझे याद है मैं फैसलाबाद में, ABN just had 5 branches, तो हम फैसलाबाद में बैठे हुए थे. We were looking for a branch location. अब इमेजिन करें 5 ब्रांचेस का एक बैंक. अब हमने 1-2 डिलीवरीज T20 की कर ली थी. अब हम वहाँ बैठे हुए, तो हम खाना खा रहे थे रात को घंटा घर में बैठ के. वहाँ पे एक साहब आए मेरे पास जो सर्व करते हैं.
उन्होंने कहा कि जी आप कहाँ से वगैरह वगैरह, तो हमने कहा कराची से आए, कहाँ काम करते हैं, हाँ आपको नहीं पता होगा। हमने कहा उनको कि ये छोटा सा बैंक है एक, कौन सा बैंक है, तो हमने कहा वो आपको नहीं पता होगा। उन्होंने कहा नहीं बताएं, तो हमने कहा वो ABN AMRO, तो उन्होंने कहा वो ये क्रिकेट वाला बैंक है। सो रिकग्निशन क्या था, हाँ, यस। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ स्पोर्ट का बहुत पुल है, अगर आप स्पोर्ट को पैकेज करेंगे ठीक तरह फॉर द कंज्यूमर्स, इट्स एंटरटेनमेंट, सो यू हैव टू पैकेज इट प्रॉपर्ली एंड यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ हाउ टू पैकेज इट। तो अगर आप इसको पैकेज करेंगे, इसकी तरफ आप आईबॉल्स खींचेंगे, तो इसके साथ जो ब्रांड जोड़ेंगे वो आपका ब्रांड को वैल्यू मिलेगी। बिल्कुल। सो ये था हमारा T20 का जो नेशनल T20 की स्टोरी। उसके बाद जब इंडिया ने IPL कर दिया तो द PCB वांटेड टू डू व्हाट इज टुडे नोन एज द PSL। तो आई यूज्ड टू कीप nudging them कि यार आप करें। तो देन दे केम, दे वन डे दे कॉल्ड मी अप एंड दे सेड कि वो जो इंडिया ने हमें किया है PSL IPL, हमें उस तरह का कुछ करना है। तो हमने कहा ठीक है, गिव अस सम टाइम। तो कराची में एक कमरे में 4 लोगों ने बैठ के, एक फाइनेंस के बैकग्राउंड, एक रिसर्च के बैकग्राउंड से थे, एक बिजनेस के बैकग्राउंड से थे, एक मार्केटिंग के बैकग्राउंड से, हम 4 लोगों ने बैठ के रिसर्च की और इसका एक पूरा ढांचा बनाया। एक मीडिया के बैकग्राउंड से भी थे, तो हमने इसका ढांचा बनाया कि यार ये है क्या, ये फ्रेंचाइज लीग होती क्या है। सो वी पुट अ प्रेजेंटेशन टुगेदर एंड देन वी वेंट एंड प्रेजेंटेड इट टू द PCB। ये है फ्रेंचाइज लीग, ऐसे होती है, ठीक है। तो देन दे सेड टू अस कि आप आइए और आप हमारे साथ बैठ के तो इसको डिजाइन कीजिए, बनाइए। तो देन वी सैट विद देम इन 2011-12। तो ये ज़का अशरफ साहब उस जमाने में फिर चेयरमैन थे। तो हमने इसको डेवलप किया, लॉन्च भी कर दिया, मगर वो लॉन्च, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो लॉन्च रुक गया। फिर नजम सेठी साहब आए 2014 में। एक मिनट, जाएंगे क्यों नहीं, क्यों रुक क्यों गया? Yeah, the journalist inside you has come out. No, this is a valid question कि क्यों रुक गया? You can अब मोटी तरह से कह सकते हैं कि क्यों। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये उस जमाने में एक टीवी चैनल था जो हमारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को कवर करता था। PTV जो है एक्चुअली, तो ये उसको राइट्स उठाने चाहिए थे टू स्टार्ट विद, जाहिर है, बिकॉज एक नेशनल प्रोडक्ट है। तो इसको नेशनल चैनल को, हाँ, अब PTV को उनकी एक पार्टनरशिप थी विद दिस अदर चैनल व्हिच वाज नॉट अ पाकिस्तानी चैनल। तो जनरली जो मीडिया हाउसेस होते हैं ना, वो दे वांट टू टेक ओवर द एंटायर थिंग। जब हमने पहली दफा इसको किया तो इस मीडिया चैनल ने कहा हमसे कि जी हम ये पूरा टूर्नामेंट उठाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा हम पूरा टूर्नामेंट नहीं बेच रहे, हम तो सिर्फ इसके, आपको सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचेंगे, जो इसकी फ्रेंचाइज राइट्स हैं हम इसको सेपरेटली फ्रेंचाइजीज को बेचेंगे और इसकी स्पॉन्सरशिप को हम सेपरेटली बेचेंगे, बिकॉज दिस इज कॉल्ड अ डू इट योरसेल्फ मॉडल, DIY हम इसको कहते हैं। ठीक है। तो DIY में फायदा जो है वो, अगर प्रोडक्ट अच्छा हो जाए तो फायदा PCB को और फ्रेंचाइजीज को होता है। तो अगर आप ये किसी को, फर्ज करें आप मुझसे उठा लें, आप कहें कि जी ये मुझे सारा दे दें, तो आप फिर मुझे सारा फायदा ट्रांसफर नहीं करेंगे, राइट। फिर आप कहेंगे आप, मैं रिस्क तो मैं ले रही हूँ, फायदा मैं आपको क्यों दूं, राइट। तो हमने PCB को कहा था कि आप ये नहीं करेंगे, ये आप किसी एक बायर को सारा कुछ उठा के नहीं देंगे, इसको हम सेपरेटली बेचेंगे, सो दैट फायदा भी सबको आए और आपको भी आए। That makes sense. सो वो चैनल को वो पसंद नहीं आया वो बात, ठीक है। उन्होंने जाके PCB से, क्योंकि वो और भी राइट्स उठाते थे, अच्छा, तो उन्होंने जाके PCB को डरा दिया कि जी ये तो अगर हम नहीं उठाएंगे तो फिर ये देखें हम आपके बाकी जो राइट्स उठाते हैं वो हम नहीं लेंगे, हाँ। और वो जब हुआ तो PCB गॉट अ बिट कोल्ड फीट और उन्होंने इसको खींच लिया। और उसके बाद तो when they decided to close down, तो क्योंकि मैं वहाँ पे एज अ कंसल्टेंट था तो आई लेफ्ट। उसके बाद फिर नजम सेठी साहब आए तो he wanted to do it, then people approached us and then they said कि आप, मैं गया, फिर then Najam Sethi and his team and myself also, then I again went and stayed at the National Cricket Academy for 8-9 months, and then then we delivered this product again, and जब हमने इसको डिलीवर किया तो फिर वही
वही माफिया फिर से उठ के आया। अच्छा। और बट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू मिस्टर सेठी कि ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व एंड ही सेड कि कम वॉट में इसको हमने करना है। तो वो फिर माफिया को उन्होंने टैकल किया। एंड फ्रेंचाइजीज वगैरह जो थे वो वी वर डीलिंग विद दैट। सो वी गॉट a media buying company who came and picked up the broadcasting rights. Generally ऐसे होता नहीं, broadcaster आके उठाता है। और franchises में I think it was a very historic day कि एक दिन में वो 5 franchise in one bid, अच्छा। 5 different franchises were sold to 5 different people in a single day bidding process. अच्छा। So and That's remarkable. That एक ही was, दिन में। yes. So in PCB's history, this was probably the most valuable product sold. So अगर मैं आपको इस तरह से कहूँ कि उस ज़माने में PCB अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से स्पॉन्सरशिप प्लस ब्रॉडकास्ट अगर 10, 12, 13 मिलियन डॉलर रेवेन्यू उठाता था, तो ये प्रोडक्ट की फ्रेंचाइज फी जो थी वो 9.3 मिलियन डॉलर्स थी पर ईयर, यानी कि 5 टीम से 9.3 मिलियन डॉलर्स आपको मिलता था, प्लस आपकी 3 से 4 मिलियन डॉलर पर ईयर की आपकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिके, प्लस 2 मिलियन डॉलर इनफैक्ट 3.5 मिलियन डॉलर के आपके सेंट्रल स्पॉन्सरशिप राइट्स बिके। तो और ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल राइट्स जो है वो पूरे साल चलते हैं, राइट, बिकॉज पाकिस्तान ये प्रोडक्ट सिर्फ 21 दिन का प्रोडक्ट है। आज भी ये it's a 30-day product, and today this product creates more than $50 million of total revenue for itself. So and in my view this is an undervalued and undersold product today, and where it should have been today वो वहाँ नहीं है आज। अच्छा, तो आप PCB और ये PSL के साथ कब तक? मैं पहले साल था जब हमने लॉन्च कर दिया। अच्छा। Then I moved on, हमने अपना काम कर दिया था। Then they had to, if they, you know, we could have helped them, we could have. That's what I'm thinking. Yeah. So ideally speaking, I think we could have helped the PCB in building this product, you know, and making it even better year on year. But PCB is PCB. No changes there. So अब जैसे you had said earlier once के launching the PSL is 10% of the work and building the league is 90%. So when you look at PSL down the line, तो you think you already said कि भाई जो बहुत सारी चीज undervalued product है, एक तो ये है, उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो PSL कर सकता था? देखिए, आज अगर आप देखते हैं PSL को, तो आपका at the end of the day sport is entertainment. तो entertainment जो है उसकी एक टारगेट मार्केट होती है, ठीक है। आपकी टारगेट मार्केट एक है क्रिकेट फैनेटिक्स across the world, पूरा मुल्क, across the world actually, across the world. And yes, पहले तो cricket fanatics in Pakistan, then cricket fanatics in the region, then across the world. Then you have sports loving people in Pakistan, then in the world. अगर आपको स्पोर्ट्स टूरिज्म चाहिए तो आपको क्रिकेट फैनेटिक्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स लवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, सब मिला, ठीक है ना। तो जैसे स्पोर्ट्स टूरिज्म होती है। And then you have big eventers, so people who just love to go to big events. They're neither sports lovers or, you know, concert पे भी चले जाते हैं और इधर भी चले जाते हैं, they want to go to big events. तो ये आपकी टारगेट मार्केट होती है। अब आपने देखना है कि ये टारगेट मार्केट कंज्यूम क्या कर रही है, राइट? वो आपका PSL भी देख रही है, ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश भी देख रही है, इंडिया का IPL भी देख रही है, बांग्लादेश भी देख रही है, ILT भी देख रही है, ये सारी चीजें वो कंज्यूम कर रही है, ठीक है ना। 100 बॉल भी देख रही है इंग्लैंड का। तो इनकी क्वालिटी देखें, यू आर एक्चुअली कंपीटिंग अगेंस्ट दिस, सो यू हैव योर क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट हैज टू बी सच, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इज इट एंटरटेनिंग फॉर समबडी हु इज वाचिंग, एंटरटेनिंग इनफ एज कंपेयर टू द अदर्स। आपने आइसक्रीम लॉन्च की तो अब आपकी आइसक्रीम कंपीट करेगी ना किसी और के साथ। तो ये तो आप नहीं कह सकते क्योंकि मैंने आइसक्रीम लॉन्च कर दी और ये ब्रांड तो यही है, बस बेस्ट है, तो अगर नहीं अच्छी हुई तो नहीं कंपीट करेगी। तो इसको अपग्रेड आपको करते जाना चाहिए,
इसका मतलब ये है कि यू हैव टू स्टडी कि अपग्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। आप टेलीविज़न पे कैसे अपग्रेड करेंगे इसको, क्या आप कोई टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं, क्या आप इसका बिल्डअप लेके आ सकते हैं, क्या आप इसमें प्लेयर्स का कोई एलिमेंट लेके आ सकते हैं, क्या आप प्लेयर्स एंगेजमेंट का कोई प्रोग्राम लेके आ सकते हैं, प्लेयर्स एंगेजिंग विद द कम्युनिटी एज अ होल। क्या आप स्टेडियम में जो लोग आते हैं तो आप स्टेडियम में कैसे उनको एक एक्सपीरियंस देते हैं, जो कि स्टेडियम में आप कैसा एक्सपीरियंस देते हैं जो कि एक मजेदार एक्सपीरियंस, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। सो इट डजंट रियली हैव टू बी ओनली वॉचिंग क्रिकेट, राइट? फ्रॉम द टाइम यू start your journey from the house, from the time you start your journey from the house to go to the stadium, how enjoyable do I make that journey? Where am I aware कि आप फैमिली भी आएगी, आप बच्चे भी लेके आएंगे, सिंगल लोग भी आएंगे, ठीक है ना, young men and women भी आएंगे, you know, how do I engage these people inside and outside the stadium so that this entire, ये एक मेला मैं बनाऊं, so that आपको एंगेज करूं मैं, ठीक है ना। एक ये है। फिर मैंने सिर्फ टूर्नामेंट के वक्त तो नहीं एंगेज करना, मैं इसको बिल्डअप कैसे करूंगा, वही बिल्डअप वाली बात। अब अगर मैंने पीएसएल को बिल्डअप करना है तो चले पाकिस्तान में ही मैं कैसे बिल्डअप करूंगा। एक तो चले तरीका ये है कि मैंने वो बिलबोर्ड्स लगा दिए, नाउ बिलबोर्ड से आगे जाना पड़ेगा हमें, यू नो, बिलबोर्ड्स के आगे मैं आपसे कैसे एंगेज करूंगा विद द कम्युनिटी। हाउ डू आई ब्रिंग कराची टू एंगेज विद कराचीइट्स? How do I bring Karachi Kings to engage with Karachiites? How do I bring Lahore Qalandars to engage with the Lahorites? No, you know, maybe 60 to 90 days before the tournament starts, right? वो engagement का क्या process है, उस brand building का क्या process है। तो एक तो ये चीज है, मुझको ये देखना है कि as a product, and then देखिए मैं कोई बड़ी बात नहीं कह सकता, but one has to dream a little bit, ठीक है। Of course. विंबलडन आप देखती हैं, तो विंबलडन आज इट्स अ ग्लोबल प्रोडक्ट, और कितने सालों से चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है, और आज भी आप देखती हैं विंबलडन। हाँ, बिल्कुल, हाँ, ठीक है, एक इवेंट है, एक इवेंट स्पोर्ट्स कैलेंडर, यू हैव टू वॉच। और विंबलडन नाउ इज ओन्ड बाय द ग्लोब, हाँ बिल्कुल, एंड इट क्रिएट्स स्पोर्ट्स टूरिज्म, राइट? सो कैन वी हैव PSL at least as a regional event owned by the region, ठीक है ना, कि वो कहें कि यार ये जो क्रिकेट का ये जो इवेंट है ना, ये चलें IPL एक फर्क स्टैंडर्ड पे है, बट उसके बाद अगर कोई इवेंट है तो PSL है। ये हर तरह से, इसके लिए वी हैव टू फ्लाई टू पाकिस्तान टू गो एंड आई मस्ट गो एंड वॉच दिस इवेंट, ठीक है, दैट हैज टू बी द पुल। ये आप, और आज आप क्या सोच रहे हैं कि जी स्टेडियम नहीं भर रहे, खाली पड़े हुए थे, जबकि ये ऐसे होना चाहिए कि जी ये तो you need to be attracting people, jam packed। यहाँ पे PCB में कैसे सेलिब्रिटीज को बुला लेते हैं, उनको बिठा देते हैं आगे की कुर्सियों पे और उनको दिखाते हैं क्लैप करते हुए, छलांगे लगाते हुए, लेकिन उससे तो क्राउड्स नहीं आ रहे, नहीं और एंगेजमेंट तो है ही नहीं, बिल्कुल, और ना स्टोरी टेलिंग है, बिकॉज जैसे उनकी मार्केटिंग में बात की, हाँ, स्टोरी टेलिंग, जैसे आप क्रिकेटर्स को देखिए, उनके बैकग्राउंड्स कहाँ से आए, उनकी क्या जबरदस्त स्टोरीज है। एब्सोल्युटली। कभी कभार आप पढ़ते हैं कि यूजुअली किसी फॉरेन पब्लिकेशन में कि ये क्रिकेटर इस गांव से आया, इसने ये मेहनत की, यहाँ से डिफरेंट एरियाज, रीजनल एरियाज और पाकिस्तान जो बैकवर्ड एरियाज समझे जाते हैं, वहां से इतने सुपरस्टार्स आते हैं जो जाहिर है बहुत मेहनत करते हैं, तो उनकी स्टोरीज कहाँ हैं? बिल्कुल, और यही तो है, तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग यू नीड, कि यू नो स्टोरी टेलिंग भी हो, साथ बिल्डिंग ऑफ द प्रोडक्ट भी हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन, आपने एक कैमरा की टीम बुलाई और ब्रॉडकास्ट प्रोड्यूस कर दिया और कुछ ग्राफिक्स चला दिए, यह पुरानी हो गई है बात। They have to move with the times. You have to move, so you have to bring in the storytelling. So how do you engage people on the television? How do you engage people as they come in and engage with you at the stadium? How do you engage people before the event even starts, and not just in Pakistan, outside of Pakistan, ठीक है? तो ये सोचना पड़ेगा, एक ये पीस है इसका। दूसरा पीस ये है कि आज जो रेवेन्यूज फ्रेंचाइजीज बनाते हैं, उससे ज्यादा रेवेन्यूज फ्रेंचाइजीज को आज बनाने चाहिए थे। तो फ्रेंचाइज जब हमने बेची, तो फर्ज करें माहीन ने हमसे कराची की फ्रेंचाइज खरीदी, तो हमने कराची और एक्चुअली सिंध की ज्यूरिसडिक्शन माहीन को दे दी कि ये अब आपकी फॉलोइंग बनाएं आप यहाँ से, ठीक है? अब आप इस ब्रांड को जैसे जैसे बनाते हैं, आपकी फॉलोइंग बनती है, प्लेयर्स आते हैं, रिकग्निशन बनती है। तो वंस यू डेवलप अ फॉलोइंग,
अब फॉलोइंग आप कैसे डेवलप करते हैं? बाय ब्रांड एक्टिवेशन एंड एक्टिविटीज, ठीक है ना? उसमें प्लेयर डेवलपमेंट भी आता है, उसमें यूथ डेवलपमेंट भी आता है, स्कूल्स एक्टिविटीज आती हैं, एंड अदर सॉर्ट्स ऑफ एंगेजमेंट्स दैट हेल्प यू डेवलप अ फॉलोइंग. नाउ दिस कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, राइट? हमारा PSL 3 महीने के लिए खुलता है, फिर बंद हो जाता है. फिर आप कभी देखते हैं किसी को? फिर 3 महीने के लिए खुलता है, फिर बंद हो जाता है साल. तो ये ब्रांड को पूरे साल चलाना बहुत जरूरी है. जब ये चलाएंगे आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, जब फॉलोइंग बढ़ेगी तो फिर आप उसको मोनेटाइज करेंगे. बिल्कुल. हाँ. अच्छा, मोनेटाइज करने के लिए कैसे मोनेटाइज करेंगे? आपके पास, अगर आप एक, वही रिटेल वाली बात, अगर आप एक पिरामिड ले लें और सोशियो इकोनॉमिक इसमें अपने फॉलोअर्स को तोड़ दें, तो इसमें अमीर लोग भी होंगे, मिडिल क्लास भी होंगे, लोअर मिडिल भी होगा और लोअर क्लास भी होगी. इन सब की नीड्स हैं. अब क्योंकि आपकी फॉलोइंग है तो आप जाइए कि अगर आपको पता है कि इसको लग्जरी प्रोडक्ट चाहिए, इसको कुछ और चाहिए, बेसिक नीड्स की प्रोडक्ट चाहिए, इसको और बेसिक चाहिए, आप को ब्रांड कीजिए, ठीक है? वो सर्विसेज के थ्रू और वो प्रोडक्ट्स के थ्रू आप उनको एडवर्टाइज कीजिए. इसी तरह अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड देखें तो उनके, आई थिंक कोई लास्ट आई सॉ 200 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, छोटे छोटे टिक टैक से लेके लग्जरी प्रोडक्ट्स तक. Now this generates today, these are mature obviously franchises, but this generates, इसी तरह अगर आप ब्लू जेज का देखें तो वो भी ऐसे ही है, ठीक है, इन कनाडा. इसी तरह अगर आप NFL की टीम उठा लें तो वो भी ऐसी है. तो ये ब्रांड को अलाइव रखती हैं, these products and services and engagements keep the brand alive throughout the year. Now when they keep the brand alive throughout the year, that means के एक तो ब्रांड अलाइव रखता है, दूसरा आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिकते हैं. इन मैच्योर इकोनॉमीज ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की सेल 30% रेवेन्यू लेके आती है टूवर्ड्स द फ्रेंचाइज, ठीक है? एक ये एलिमेंट है. दूसरा ये है कि क्योंकि ब्रांड अलाइव हो जाता है तो आपके यहाँ पे आपको जो टीम स्पॉन्सर करने आता है, फर्ज करें आपको कोई भी ब्रांड आ जाता है बड़ा स्पॉन्सर करने, आप फिर उससे वैल्यू ज्यादा मांगते. क्यों? क्योंकि आपने अपने ब्रांड को सारा साल अलाइव रखा है, उनको भी वैल्यू मिलेगी उससे, ठीक है? It's a win-win for everyone. It's a win-win for everyone. फिर आप ब्रॉडकास्टर जब लेके आते हैं, जो ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन राइट्स आपसे लेता है, उससे भी आप कहते हैं कि मुझको वैल्यू ज्यादा चाहिए क्योंकि ये ब्रांड्स बहुत बड़े हैं, इसकी आईबॉल ज्यादा आएंगी बिकॉज इसकी फॉलोइंग ज्यादा है. स्टेडियम्स देखो फुल हैं, तुम्हारे पास रेटिंग्स बहुत ज्यादा आएंगी क्योंकि ज्यादा लोग इसको देखेंगे. तो इट्स अ विन-विन. ये जो पीस है ना franchising ka or keeping the brand, the PSL brand as well as the franchise brands alive, this is something that the PCB needed to do when they launched this product, right? Achha. It's like saying कि अगर आप मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइज पाकिस्तान लेके आती हैं तो क्या आप आके सिर्फ ये कहेंगी भाई सलमान आप मैकडॉनल्ड का फ्रेंचाइज ले जाइए, अब अपनी बन कबाब की रेडी लगा लीजिए वहां पे? ऐसे तो नहीं कहेंगी ना. आप कहेंगी ये मैकडॉनल्ड का मैं फ्रेंचाइज आपको दे रही हूँ, ये है इसकी मशीन्स, ये ट्रेनिंग है, ये मेरी मार्केटिंग टीम होगी, आपको हम टर्न की बेसिस पे इसको तैयार करके देंगे, इसको ऐसे ऐसे चलाना है, फिर आपको मार्केटिंग के साथ ऐसे सपोर्ट करेंगे, आपने ये करना है, हमने ये करना है, तो फिर आपकी सेल बढ़ेगी. ऐसे होता है काम. तो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि PCB ने, उन्होंने अपना एक सेपरेट सेक्रेटेरिएट बना लिया है. अब उस सेक्रेटेरिएट को एनरिच करें विद पीपल. They need to have a much bigger team and much more solid team of professionals. You need to have C-suite people who understand marketing, who understand commercializing, who can actually go and sit and talk to C-suites across corporate Pakistan and across the world, people of certain caliber, and be able to build and market this product and be able to attract the right sort of partners to work with them. But this just sounds like logic and common sense to me. Of course it does. So what's stopping PCB from doing just this? This is my question. बहुत अच्छा सवाल है आपका. मैं आपको बिल्कुल ऐसे कहूँ कि मार्केटिंग, कमर्शलाइजिंग का जो स्पेस है ना, we need to learn more of it as a nation, and I think the Pakistani government, our government needs to become more aware कि अगर हमने अपने ब्रांड को ब्रांड पाकिस्तान को मार्केट करना है तो we need to get very high quality professionals coming in and marketing brand Pakistan. तो अगर ब्रांड पाकिस्तान पे फोकस करेंगे तो ब्रांड PCB पे भी, फिर ब्रांड इधर भी वही सोच जाएगी. अभी ब्यूरोक्रेटिक सोच है हमारी इन एरियाज में. इट्स आइदर दे फोकस ऑन ऑपरेशंस, सिक्योरिटी,
infrastructure. But as far as business development, marketing, product development, commercializing, ये expertise अभी नहीं है वहाँ पे, और अगर है भी तो इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे वो ठीक तरह, क्योंकि उसके लिए लीडरशिप आपको चाहिए होती है। चलिए, हम होप करते हैं कि वो हमारा पॉडकास्ट देखें, आपकी बातें सुने, और ये जो आपने गाइडेंस दी है और इतने सारी अच्छी सजेशंस दिए हैं, they take it on board and maybe they ask you to come back to PCB and work with them for the PSL, because these are all that's not the objective. That's not the objective, but it could be a kind of an advantage. There are a lot more other, there are other people in this in our country who can always help them in doing this. But if they ever want any help, I'm more than willing. It's Pakistan. So this is a Pakistani product. We should probably have the chairman of PCB here on this podcast and ask him these very same questions. Sure. That what is happening and kya, because this is a win-win situation for everyone. Exactly. So it should be something that should be done without any any further delay. Yes. ताकि PSL, जैसे आप कह रहे हैं, बहुत अच्छा, it was a great event for Pakistan, but it's not been marketed properly. तो हम तो यही देख रहे हैं कि अभी PSL चल रहा है लेकिन स्टेडियम सब खाली पड़े हुए हैं. So just अच्छा, before I move on from cricket, I need to ask you this. आपका ये सच है कि आपके रिश्तेदार हैं सलीम मीर, जिन्होंने सरफराज नवाज को रिवर्स सिखाया? मैंने अपनी ड्यू डिलिजेंस की हुई है. जी बिल्कुल ऐसे ही है. He is passed away, सलीम मीर, मेरे मामू हैं. And he played for Lahore. In fact, मेरे एक और कजन भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है 75 का वर्ल्ड कप. PJ परवेज जमील मीर उनका नाम है. बट ये थे जो बेसिकली these are my दो मामू थे मेरे. एक तो ये थे सलीम मीर और एक जलील मीर थे. दो भाई थे. और इन्होंने तो जलील मीर was a very good batsman. He also passed away. And Salim Mir was a all-rounder. And yes, so they, Salim Mir actually, I think MCC की कोई टीम आई हुई थी, तो he used to, these are educated people, so उनके साथ बैठ के गपशप लगाते थे. तो they learned from them the art of reverse swing. अच्छा. तो फिर सलीम, ये जो सरफराज नवाज साहब हैं, ये इनका क्लब होता था. सलीम और जलील मीर एक क्लब चलाते थे लाहौर में. तो उस क्लब में एक दिन सरफराज नवाज साहब आए, और ये वर्बेटम स्टोरी है जो उन्होंने मुझे सुनाई है, मेरे मामू ने. तो उन्होंने कहा कि वो आए और साइकिल पे आए, और उन्होंने एक बॉल पकड़ी हुई थी अपने हाथ में. तो उन्होंने कहा कि जी मैंने बॉलिंग करनी है. तो उन्होंने कहा ये आप बॉलिंग कीजिए. जब जाहिर है सरफराज नवाज में टैलेंट तो था, उन्होंने जब बॉलिंग की तो उन्होंने कहा यार ये तुम बड़े अच्छे हो. तो ही स्टार्ट प्लेइंग फॉर द क्लब. इवेंचुअली व्हेन सरफराज नवाज वो क्लब के लिए खेले, और इवेंचुअली व्हेन ही मेड इट टू द पाकिस्तान टीम, तो ही लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम सलीम मीर. एंड देन ये अब लोगों को पता नहीं है. एंड आई थिंक ये सलीम अल्ताफ साहब ने या किसी ने अपनी किताब में भी लिखा है. आई डोंट नो व्हिच बुक यू प्रॉब्ली पिक्ड इट अप फ्रॉम अ बुक. और फिर Sarfraz, Salim Mir also played with Imran. Achha. So this skill was passed on and then perfected further, etc., etc. But yes, उनका जिक्र और ज़्यादा होता नहीं है. But I thank you, आपने उनका जिक्र किया. तो ये सरफराज नवाज ये मानते हैं कि उन्होंने रिवर्स स्विंग आपके आप जब भी उनसे पूछेंगे वो जरूर मानेंगे. मुलाकात होगी. खुद नहीं कहते, but I'd love him to say it himself. अच्छा. कि भाई ये जो था ये सलीम मीर ने मुझे सिखाया. I'd love him to say it himself. But I think जब आप उनसे पूछें तो वो जरूर इस पे एग्री जरूर करते हैं. अच्छा, हमने रीसेट की बात की दो चीज़ों में, एक रिटेल बैंकिंग सेक्टर में और एक क्रिकेट में. अब हम रीसेट को लेके आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं. सो आपने अपनी लाइफ में अपने आप को रीसेट किया और क्यों किया, और व्हाट वाज द जर्नी लाइक, उसके बारे में बताएं. अच्छा, मेरा एक ही रीसेट हुआ है to be honest. और वो था कि जब मैं उम्रा करने गया, और वो उम्रा जब मैं करने गया तो मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, बस मैं चला गया. अच्छा. और जब मैं गया तो आई एम अ मिरेकल टू माई सेल्फ. किसी और के लिए तो मैं हूं ना हूं, बट आई एम अ मिरेकल टू माई सेल्फ. अल्लाह का करना. तो ना ही मैं कोई चीज़ें मैंने को पढ़ी हुई थी, ना ही कोई, आई जस्ट वेंट.
एंड व्हेन आई वेंट तो वहाँ पे जाके वो उम्रा किया एक, फिर दूसरा उम्रा किया, और जब मैंने दूसरा उम्रा कर लिया तो उस वक़्त जैसे आप कहें ना कि इल्हाम, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि ये काबा जो है ये मुबारक है और हिदायत है लोगों के लिए, तो इसमें आयतें बयान होती हैं। तो मैंने तो वो आयतें पढ़ी नहीं थी, मगर मुझे वहाँ पे जब मैं था तो ये बड़ी चीज़ एक क्लियर हो गई थी कि ज़िंदगी का मकसद यही है। अच्छा। अब मुझे ये नहीं पता था कि है क्या, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, मगर ये बहुत क्लियर हो गया था कि यही है। एक होता है ना जैसे आपका अल्लाह ताला आप पे खोल देते हैं चीज़, तो वो खुल गया। और फिर जब मैं वापस आया वहाँ से तो एक मेरी डिस्पोजिशन में चेंज था, और जो कि मेरे सबसे बड़े बेटे ने, जो कि उस वक्त आई थिंक 10 साल के थे, 8 साल के थे, ये 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ 10-11 साल के थे, तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि यू चेंज्ड। अच्छा। हाँ, तो अब वो जाहिर है वो मेरी डिस्पोजिशन में कोई चेंज उन्होंने देखा होगा। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये चीज़ अल्लाह ताला ने खोली कि ये जो किताब है, अल किताब हमारी कुरान, ये तो बुक ऑफ एक्शन है। तो अल्लाह ताला ने हमें कहा भी है सूरह बकरा में, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये उसके लिए हिदायत है जो उस मुत्तकी वो होता है जो कॉन्शियस होता है अल्लाह की आयत के साथ, तो जो कॉन्शियस होता है उस पे एक्ट करता है, उसके लिए ये हिदायत है। सो देन दैट्स बिन अ बिग, आई मीन मैं तो बहुत ही गुनहगार और सा आदमी हूँ, और ये अल्लाह ने समझा दिया मुझे और खोल दी मेरे ऊपर बात, तो उसके बाद से अब एक ही जंग है, और वो नफ्स की जंग होती। वो इंसान फिर सारी उम्र यू स्ट्रगल विद योर ओन नफ्स सो दैट आप सीधे रास्ते पे रहें। तो वो एक पार्ट जो है वो उसके वो जो था वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा, ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये 2005 की बात कर रहा हूँ, ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और ना ही मैं, जब मैं वापस आया वहाँ से तो मुझे लोगों ने कहा ये बस 10-15 दिन का तुमको बुखार है, ये उतर जाएगा, फिक्र ना करो। वो अल्लाह का करना कि वो 10-15 दिन का बुखार जो है, हाँ ये ज़रूर है कि उसमें एज यू गो थ्रू लाइफ और आप कोशिश करते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए, तो एक हमारे साथ एक शैतान मियाँ भी तो लगे हैं, तो वो भी कोशिश करते रहते हैं कि आपको हटाएं, तो वो स्ट्रगल आपकी जारी रहती है, और उसमें ही आप सारी ज़िंदगी आपकी निकल जाती है। बट इफ़ यू आर अ बेटर पर्सन or you know as you progress in life, if you become better, yes you fall and rise, but if on a linear basis अगर आप अपने आप को improve कर पा रहे हैं तो I think you're doing a okay job. So यही तो जिहाद है जी, in the real sense of the term, यही the struggle within yourself. यही। और शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट पे आने का सलमान, आपसे बहुत कुछ हमने सीखा आज, और उम्मीद है कि फिर हमारी मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। एंड नाज़रीन, आप लोगों से मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट पे। टिल देन, खुदा हाफिज़।